I hope you all are fine and doing well. So dear students, I welcome you all again in the next video tutorial of herbal drug technology. So in this video, we are going to cover the stability testing of herbal drugs, that is included in unit number 4. So let's start the stability testing of herbal medicines. So just see the overview in this video. Basically, we will cover the general aspects of stability studies, types, method, some of the special conditions related to the stability studies, general protocols of the stability testing of herbal drugs. So let's start the stability studies. What is the stability testing? It is an essential requirement in the registration process for all medicinal plant products, including herbal medicinal products. These tests are performed to define the storage condition and the product's shelf life. So stability testing or stability studies mean how long our formulation be stable in a particular environment condition. Suppose आप लोगों ने कोई formulation बनाई in your laboratory और आपने उसको suppose करिए कि आपने बाहर रख दिया at the room temperature in your laboratory, and you will observe that within 1 to 2 months your formulation gets spoiled or degraded. But when you keep that particular formulation in the refrigerator or in a particular condition that will prevent its spoilage, it might take some time to get thoroughly decomposed. उसी फॉर्मुलेशन को जब आपने रेफ्रिजरेटर में रखा या एक पर्टिकुलर कंडीशन पे रखा जहां पे भी उस फॉर्मुलेशन को प्रिवेंट किया जा सके माइक्रोबियल स्पॉयलेज से, तो आप लोग ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपकी जो फॉर्मुलेशन है काफी देर तक टिकी, काफी देर तक स्टेबल रही. तो स्टेबिलिटी टेस्टिंग में भी हम हर्बल प्रोडक्ट्स बनाएंगे वो मार्केट में आने से पहले सबसे पहले हमें उनकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग को परफॉर्म करना है, उनकी शेल्फ लाइफ को चेक करने के लिए कि वो फॉर्मुलेशन कितने समय तक स्टेबल रह सकती है इन द रूम टेम्परेचर और द डेफिनेट कंडीशंस आल्सो. क्योंकि कई फॉर्मुलेशंस पे हम ये मेंशन करते हैं कि इट शुड बी प्रिजर्व्ड इन द रेफ्रिजरेटर, इन द कूल प्लेस, इन द कोल्ड प्लेस और इन द ड्राई प्लेस. तो वो जो भी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से हम जो भी फॉर्मुलेशन है उसको हम टेस्ट करेंगे. देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स फॉर टेस्टिंग इट एंड देयर आर डिफरेंट मेथड्स. So yes, it is an obligatory requirement in the registration process, and these tests are performed to define storage condition and the product shelf life. Very important. Now the question is, why there is need to study the stability testing? First, 4 important and the most common reason is to ensure the product quality. So the manufacturer, by ensuring the product quality for selection of the adequate formulation, determining of the shelf life and storage condition, preparation and stability, basically the substantiation of the claimed shelf life. Suppose कंपनी, कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी क्लेम कर रही है कि इस प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ 2 इयर्स है और आप लोगों ने जब स्टेबिलिटी टेस्टिंग की उसकी शेल्फ लाइफ आई मान लीजिए 6 मंथ्स. तो उस क्लेम को चेक करने के लिए, उसको ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए, क्रॉस रेफरेंस चेक करने के लिए वी विल डू द स्टेबिलिटी स्टडीज आल्सो टू प्रोवाइड एविडेंस ऑन हाउ द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट वेरीज विद द टाइम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द एनवायरनमेंट. If we talk about the herbal drugs or preparation, there are different type of herbal drugs available in the market. Herbal drugs extract forms में भी है, पाउडर फॉर्म में भी है. They are also available. अगर हम आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की बात करें, आप लोगों ने सारी फॉर्मुलेशन पढ़ी है. They are also available in the form of लेहा or you can say अवलेह, then आसव, अरिष्ट, गुटिका, वटिका, भस्मा, etc. So they all have a proper shelf life period. But the difficulty in assessing the shelf life of the herbal drug, or you can say the stability testing of herbal drug, is that herbal drug is a complex mixture of different chemical constituents, as we all know. कोई भी herbal drug है वो एक single ingredient ना होगी, उसके अंदर mixture of ingredients होते हैं हमेशा, जिसकी वजह से उसकी stability testing में बहुत सी प्रॉब्लम्स भी आती हैं. क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट अगर किसी भी फॉर्मुलेशन में बनाते वक्त अगर मैन्युफैक्चरिंग ठीक से नहीं हुई है और मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, तो इट माइट रिजल्टेड इनटू द less, or you can say the low shelf life of the drug. And we also know there are different factors which will affect the stability of the herbal drug, like light, temperature, hydrolysis, oxidation, moisture, polymerization, isomerization, etc. So for example, many chemical changes occurs due to exposure to light. So some of the herbal, or you can say the phytoconstituents are light stable. So अगर किसी भी herbal drug पे बहुत ज्यादा समय तक सपोज लाइट का एक्सपोजर रहेगा तो माइट रिजल्टेड इनटू द डिकम्पोजिशन ऑफ इट्स लाइट सेंसिटिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स. देन इट माइट
सेकंड इज द हाइड्रोलिसिस, रिएक्शन विद द वाटर लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर किसी भी ड्रग में मॉइस्चर ज्यादा रहेगा, नेचुरल सी बात है, स्टेबिलिटी टेस्टिंग में हमारे दिक्कत आएगी। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन और द फ्री रेडिकल फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोडक्ट। ऑक्सीडेशन से भी फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी जिससे प्रोडक्ट की डिकम्पोजिशन हो जाएगी। यस, मॉइस्चर इज अगेन इंपॉर्टेंट रीजन। समटाइम ज्योमेट्रिकल, वी कैन से द आइसोमेरिज्म टेक प्लेस, सिस और ट्रांसफॉर्म might be changes, for example menthol or you can say terpenoid, they are present in the form of isomers, cis or trans. If any, due to any environmental change, if any change occur in the cis or trans form, it might result into the decrease in the therapeutic effect of the drug. So these are the common reasons. Okay, I hope this is clear. So next is the example is given here of a terpenoid, that is pinene. So these don't have in our syllabus, so we will go. So yes, this is a main example. Vinca rosea, you all know this plant. Catharanthus roseus, again very important chemical compounds are present in this plant. Vincristine, vinblastine, anti-cancer, mitotic inhibitors. तो ये चीजें आपको याद रखनी है जब भी आप प्लांट को देखें, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए. So the effect of UV light on the total contents of the Vinca rosea plant. You can just read this line. The presence of UV light B increases the total flavonoid content. So sometimes UV light, it resulted into synergistic action also. And presence of UVA light increases the concentration of vinblastine. And also vinblastine rapidly transform into vincristine in the presence of UVA light. तो UVA light का जो अगर विनका एल्कलॉइड्स की बात करें तो it has a positive effect because it increases the concentration of its major compound, that is vinblastine, as well as its other flavonoid contents. Again very important table. अब स्टेबिलिटी टेस्टिंग की अगर हम बात करें तो बेसिकली एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज दिस ICH, वी हैव इन आवर सिलेबस आल्सो. ICH क्या है? ICH स्टैंड्स फॉर, दिस इज द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ ICH, दैट इज ich.org, एंड ICH स्टैंड फॉर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर हार्मोनाइजेशन ऑफ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स फॉर फार्मास्यूटिकल फॉर ह्यूमन यूज. So this is the exact meaning of ICH, International Council for Harmonization, and it will give us different guidelines with respect to the pharmaceuticals for human use. So according to these guidelines, entire world is divided into different zones. That is zone 1 temperate region, in which countries are there? UK, Northern Europe, USA. So tell me, where is India? Zone 3 hot and dry zone, Iraq and India. So it has a MAT and MAP values. That is, MAT stand for mean annual temperature measured in open air, and what is MAP? WP mean annual partial vapor pressure. Okay, partial water vapor pressure is MAP. WP water vapor pressure. MAP means mean annual partial. Okay, so you have to remember these two things. So there are different condition of MAT and MAP. WP, that is, MAT is here, it is less than 15 degrees Celsius, and what is MAP WP? It is less than 11 HPA. And this HPA basically relates to the Pascal pressure unit. So you have to remember this ICH table. That is zone 1, zone 2, zone 3, zone 4A, zone 4B. Don't worry, we will do this entire table in the ICH guidelines also. Okay, RS stand for relative humidity. So there are different types of stability testing method. So we will do accelerated testing, real time, intermediate and stress testing, as well as the forced degradation testing. So these are the different types of stability testing methods. Accelerated testing, real time, intermediate, stress testing and forced degradation testing. Accelerate का मतलब क्या है? Accelerate condition पे accelerate करना, किसी चीज को increase करना. Products are subjected to high temperature, humidity and light. For example, 40 degrees Celsius पे 70%, 75% relative humidity at 3 and 6 months. अब stability testing, it will take time. Stability testing एक दिन का काम नहीं है. It will take months. सपोज एक्सेलरेटेड टेस्टिंग की अगर बात करें तो उसमें 3 से 6 महीने का समय लगेगा प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी टेस्टिंग को चेक करने के लिए, जिसपे हम उस प्रोडक्ट को क्या कंडीशन देंगे? 40 डिग्री सेल्सियस एंड 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी. तो ये चीजें आपको याद रखनी है. उसी तरह से रियल टाइम, इंटरमीडिएट, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड फोर्स्ड डेग्रेडेशन टेस्टिंग. आई थिंक वी हैव shortage of time, so we will do the next part of stability testing in the next video. So thank you very much for your patience and listening. Yes, I acknowledge all the sources I have used to prepare this video. Thank you very much. I welcome you all in the part 2 video of this stability testing. So dear students, we have completed the general introduction. हमने देखा stability testing की requirement. Stability testing का मतलब क्या है? हम कुछ टेस्टिंग करेंगे ड्रग्स की at a definite storage condition
किस लिए? प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को चेक करने के लिए कि प्रोडक्ट कितने टाइम तक स्टेबल रहेगा। यस, देयर इज नीड टू स्टेबिलिटी टेस्टिंग बिकॉज प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, उसकी एफिकेसी के लिए, उसमें किसी भी तरह के केमिकल चेंजेस ना हो, वो प्रोडक्ट स्टेबल रहे, सबकी के लिए हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग को अप्लाई करना है। हर्बल ड्रग्स की अगर बात करें, हर्बल ड्रग डिफरेंट टाइप की फॉर्मुलेशंस हैं, उसमें डिफरेंट टाइप के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट मिक्सचर्स भी प्रेजेंट है, इसलिए हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जरूरत है। अगर इन्वायरमेंट फैक्टर्स की बात करें तो प्रोडक्ट को खतरा है, प्रोडक्ट को डिकम्पोजिशन हो सकती है प्रोडक्ट की, किससे? लाइट से, टेम्परेचर, पॉलीमराइजेशन हो सकती है, आइसोमराइजेशन, मॉइस्चर एंड ऑक्सीडेशन एज वेल एज हाइड्रोलिसिक रिएक्शन भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें स्टेबिलिटी टेस्टिंग जरूर करनी है। हमने ये भी देख लिया कि एंटायर वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट जोन्स बाय आईसीएच। आईसीएच गाइडलाइंस आर देयर, इसको हम डिटेल में भी करेंगे। जोन 1, जोन 2, जोन 3, 4A एंड 4B, और इंडिया इज इन जोन 3, दैट इज इन द हॉट एंड ड्राई रीजन। तो इसके हिसाब से उसकी एमएटी और एमएपी डब्ल्यूपी वैल्यूज हैं। नेक्स्ट हमने देखा टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, जिसमें हमने एक्सेलरेटेड टेस्टिंग के बारे में देखा कि अगर आपने स्टेबिलिटी टेस्टिंग करनी है और एक्सेलरेटेड टेस्टिंग अगर आप कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट पे, तो आपको अपने प्रोडक्ट को कम से कम भी 3 से 6 महीने तक टेस्ट करना पड़ेगा। किस कंडीशन में? एक्सेलरेटेड, मतलब आपको टेम्परेचर काफी इंक्रीज करना पड़ेगा। काफी इंक्रीज का मतलब क्या है? 40 डिग्री सेल्सियस और रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी 75%। In the same way, if you are doing the real time testing, then you have to perform the testing up to 3, 6, 9, 12, up to 36 months. At which condition? 25 to 30 degrees Celsius. And what is the relative humidity here? 35 to 75 degrees Celsius. So this is also known as the long term testing, because इसमें हम आप टाइम पीरियड देख ही सकते हैं, up to 36 month तक हम इसमें टाइम पीरियड लेके जाएंगे। Next is the intermediate testing conducted when accelerated studies fail. जब accelerated studies fail हो जाए तब हम intermediate testing करेंगे at with temperature at 25 degrees Celsius for longer duration of time. Then we also go for the stress testing. It includes different effects of temperature that is above 40 degrees Celsius and greater than equal to 75% relative humidity. There is another that is known as the force degradation testing performed to provide the intrinsic stability assessment of the drug. You can remember this table. Stability testing or storage condition for drugs as per ICH and WHO guidelines. So what is this table? This is the stability testing storage condition for the drugs as per ICH and WHO. So what is the first column? Intended storage condition. If the storage condition are the room temperature, then which stability testing method you use? Long term stability. You can also use intermediate and accelerated stability testing method. And what are the different temperature and humidity condition as per ICH? Over here it is given. And what are the different temperature and humidity condition as per WHO? Over here it is given. Say for example, room temperature, long term stability method you have used. So what is the temperature condition over here? 25 degree plus minus 2 degrees Celsius. And what is the relative humidity? 60 plus minus 5%, that is the relative humidity. In the same way, if you are go for the accelerated stability testing for the room temperature, then what is the temperature condition? 40 plus minus 2 degrees Celsius and 75 plus minus 5% relative humidity. In the same way, you have to remember the value of the WHO guidelines also. If you are go for the freezing condition, and which stability testing method you will use? Long term stability testing method. And what is the condition as per ICH? Minus 20 degrees Celsius. And what is the condition for as per WHO? Minus 20 degrees Celsius plus minus 5 degrees Celsius. So this is the table that you have to remember also, in which different conditions are given. अगर हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग और हर्बल ड्रग्स की बात करें, ये तो था एक जनरल प्रोसीजर जो कि आईसीएच ने दिया है डिफरेंट ड्रग्स के लिए। लेकिन अगर हर्बल ड्रग्स की बात करें तो हर्बल ड्रग सब्सटेंसेस शुड ओनली बी टेस्टेड एट 25 डिग्री सेल्सियस at 60% relative humidity with no requirement for the accelerated और intermediate testing. तो हर्बल ड्रग्स के लिए accelerated और intermediate testing रिकमेंड नहीं है। इसमें हम सिंपली 25 डिग्री सेल्सियस पे 60% relative humidity पे टेस्ट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट डिफरेंट चैलेंजेस इन द स्टेबिलिटी टेस्टिंग। तो अभी तक हमने देखा स्टेबिलिटी टेस्टिंग की जनरल डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी टेस्टिंग, कुछ एक वेरिएशन और स्पेशल कंडीशन जिसमें हमने कुछ टेबल्स याद करने हैं आईसीएच और डब्ल्यूएचओ के। Then let's see the challenges in the stability testing. ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया है। क्या चैलेंजेस हो सकते हैं किसी भी हर्बल ड्रग की स्टेबिलिटी टेस्टिंग के? सबसे कॉमन रीजन क्या है? हर्बल ड्रग इज अ मिक्सचर ऑफ, और यू कैन से द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम किसी भी हर्बल ड्रग की बात करें, जैसे से च्यवनप्राश,
हम लोगों ने डिस्कस भी किया है कई बार क्लास में कि च्यवनप्राश इज अ मिक्सचर ऑफ एटलीस्ट मोर देन 40 इंग्रेडिएंट्स, मोर देन 40 इंग्रेडिएंट। तो यू कैन इमेजिन एक ही प्लांट के अंदर एल्कलॉइड्स भी है, प्लांट मटेरियल, सैपोनिन्स, फ्लेवोनॉइड्स, कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा ड्रग कैसी है। तो अगर आप 40 इंग्रेडिएंट्स होंगे तो यू कैन इमेजिन कि कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स मिक्सचर बन जाए। तो चैलेंजेस सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टेस्टिंग में यही है कि एक्टिव substances in the herbal medicinal products consist of complex mixture of constituents and most of the markers and their therapeutic effects are unknown। हमें पता नहीं है कि प्रॉपरली ड्रग इफेक्ट, जो ड्रग थेरेपेटिक इफेक्ट दे रही है हर्बल ड्रग, वो किसके कारण दे रही है। यस, हमने कैटेगराइज कर लिया है ड्रग को कि दिस इज अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग, लेकिन अल्कोहल कंटेनिंग ड्रग में भी जरूरी नहीं है कि अल्कोहल ही है सारे, उसके अंदर भी अदर कंपोनेंट भी हो सकते हैं, उसके अंदर ग्लाइकोसाइड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर फ्लेवोनॉइड्स भी हो सकते हैं, उसके अंदर प्लांट मटेरियल भी है। तो वो जो क्लासिफिकेशन हमने अगर केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करें, वो हमने किसके बेसिस पे की है? द थेरेपेटिक इफेक्ट ऑफ द मोस्ट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट के बेसिस पे। लेकिन चैलेंज हमेशा रहेगा क्योंकि अभी तक भी हर्बल ड्रग के अंदर जो मिक्सचर्स हैं, हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर ड्रग का इफेक्ट किस केमिकल कंपाउंड की वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इज द मोस्ट ऑफ द हर्बल कंपाउंड्स आर अनस्टेबल। तो इसलिए यस, दिस इज अगेन चैलेंज। इन द कंबाइंड फॉर्मुलेशन डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट। सपोज करिए 40 इंग्रेडिएंट्स को आपने कंबाइन कर दिया और अभी हमने देखा आइसोमराइजेशन और पॉलीमराइजेशन हो गई। तो हमारे पास ऐसा मेथड है ही नहीं अभी तक डेवलप कि हम उसको डिटेक्ट कर सके कि कंपाउंड के अंदर प्रॉपर्ली चेंजेस आ रही हैं। इसलिए हमने जब भी डिस्कस किया है हर्बल ड्रग को, हर एक स्टेप पे हमें स्टैंडर्डाइजेशन का ध्यान रखना है। अगर आप 40 इंग्रेडिएंट्स के यूज करके कोई एक फॉर्मुलेशन बना रहे हैं तो उन सबसे पहला काम क्या है? उन 40 इंग्रेडिएंट्स की आपने रॉ मटेरियल टेस्टिंग करनी है, जिसमें स्टैंडर्डाइजेशन के सारे पैरामीटर्स आपको अप्लाई करने हैं। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर, हमने कई बार डिस्कस किया है। और उसके बाद भी जब फॉर्मुलेशन बन जाएगी तो उस फॉर्मुलेशन की भी हमने सारे के सारे स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर स्टडी करने हैं। अब ये सारे के सारे स्टैंडर्डाइजेशन पैरामीटर हैं क्या? जैसे सबसे कॉमनली वी विल गो फॉर द मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, then microscopic study, chemical examination, in which we can also go for the higher analytical instruments, ताकि हमें पता चल जाए कि उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स किस किस क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं भी है कि नहीं है। क्लियर है? अगर हम फिजिको केमिकल पैरामीटर्स की बात करें, यस, एश वैल्यू, मॉइस्चर कंटेंट, लॉस ऑन ड्राइंग, आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेक करना है अगर वो ऑयल है, देन ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है अगर उसमें किसी भी तरह का कंपाउंड में कायरल कार्बन या कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग ड्रग है। तो सारे के सारे पैरामीटर्स आपको अप्लाई करने हैं। इसके साथ साथ हम माइक्रोबियल लोड भी टेस्ट करते हैं, हमने WHO गाइडलाइंस में ये देखा है। अगर हम बैचेस की बात करें तो फॉर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए कंडक्टेड ऑन एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैचेस। अगर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी टेस्टिंग की बात करें तो वो किस पे करेंगे? एटलीस्ट 3 बैचेस परफॉर्म्ड अंडर नेचुरल कंडीशन। अब इस बैचेस का मतलब क्या है? जब भी फॉर्मुलेशन बनती है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, इंडस्ट्री में, तो फॉर्मुलेशन कोई एक सपोज पैरासिटामोल टेबलेट की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो कोई एक पैरासिटामोल की टेबलेट क्या है, एक पत्ता थोड़ी ना बन रहा है, उसके लाखों सैंपल्स, लाखों स्ट्रिप्स प्रिपेयर होके निकलती है मशीन से। अगर ऑटोमेटिक मशीन की बात करें तो ये भी पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक स्ट्रिप पे टेस्टिंग करें, तो इसलिए हम बैच सिलेक्शन करते हैं। पर्टिकुलर बैच का पर्टिकुलर लोट में हम सिलेक्ट करेंगे और उस पर्टिकुलर बैचेस के ऊपर टेस्ट करेंगे और उसको हम पर्टिकुलर पूरे के पूरे लोट को हम पास कर देंगे। तो इसी तरह से जो जैसे एग्जांपल दिया, फॉर्मल स्टेबिलिटी टेस्टिंग किस पे करेंगे? एटलीस्ट 3 प्राइमरी बैचेस। नाउ देयर आर डिफरेंट पैरामीटर स्टडी ड्यूरिंग दी स्टेबिलिटी टेस्टिंग। जैसे ऑर्गेनोलेप्टिक स्टडी हम देख सकते हैं, जब भी हम स्टेबिलिटी टेस्टिंग करेंगे तो सबसे पहले तो हमें कलर ऑर्डर टेस्ट ही देखना पड़ेगा कि ड्रग कहीं कैसा दिख रही है, कहीं खराब तो नहीं होगी। देन फिजिको केमिकल पैरामीटर्स आर देयर लाइक पीएच डिटर्मिनेशन, एक्सट्रैक्टिव वैल्यू, एश वैल्यू एंड मॉइस्चर कंटेंट। We will do the qualitative analysis with the help of some marker compounds. Then we can also go for the fingerprinting profile, जिसमें हम chromatography use करेंगे, HPLC, and you can also go for the microbial load analysis. So I hope this will give a brief idea about the stability testing of the herbal drugs. So thank you very much for your patience and listening.